Hi, this is Satish. Hope you are safe and staying at home during this global pandemic. Let's start the second part of Indigo. The story Indigo, written by Louis Fisher, narrates Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो की कहानी चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन करती है. Let's have a quick recap of the main points. The idea of the departure of the British. अंग्रेजों को प्रस्थान करने का विचार. The idea of the departure of the British came in the minds of Gandhiji in 1917. अंग्रेजों को प्रस्थान कराने का विचार गांधी जी के मन में 1917 में आया. Convention of the Indian National Congress in 1916. 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ. राजकुमार शुक्ला, a poor peasant, a sharecropper, came to Gandhiji and requested Gandhiji to come to his district. राजकुमार शुक्ला, एक गरीब किसान, एक बटाईदार, गांधी जी के पास आया और गांधी जी से अपने जिले में आने के लिए अनुरोध किया. शुक्ला वॉज रिजोल्यूट. शुक्ला दृढ़ निश्चयी थे. शुक्ला wanted to complain गांधी against the injustice of the landlord system in बिहार. शुक्ला बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ गांधी जी से शिकायत करना चाहते थे. शुक्ला led गांधीजी to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद. शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नामक वकील के घर ले गए. Let's proceed to the third point. In Muzaffarpur, Gandhiji decided to go to Muzaffarpur first as to obtain complete information about condition in Champaran. चंपारण की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया. लॉयर्स were called on to brief गांधी जी. गांधी जी को जानकारी देने के लिए वकीलों को बुलाया गया था. Let's proceed to the next paragraph in this story. English landlords of Champaran. चंपारण के अंग्रेज जमींदार. Most of the arable lands in Champaran was owned by Englishmen. चंपारण में ज़्यादातर खेती करने योग्य ज़मीन पर अंग्रेज़ों का स्वामित्व था. Indian tenants worked on the land. और भारतीय बटेदार ज़मीन पर काम करते थे. English landlords compelled all the tenants to plant 15% of the land with indigo. अंग्रेज जमींदार सभी बटेदारों को उनकी 15% ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया करते थे. They had to surrender the whole indigo crop to the landlords as rent. और उन्हें नील की समूची खेती को जमींदार को किराए के रूप में देना पड़ता था. Those who opposed were tortured by their hired bullies. जो इसका विरोध करते थे उन्हें उनके किराए के गुंडों के द्वारा सताया जाता था. Germany had developed synthetic indigo. और तब जर्मनी ने सिंथेटिक नील का आविष्कार कर लिया था. Now indigo plantation was not very profitable. और अभी ये जो नील की खेती थी अधिक लाभदायक नहीं थी. Therefore, they obtained new agreements from the sharecroppers. और तब इसीलिए उन्होंने बटेदारों से नए कारनामे प्राप्त कर लिए थे. They were to pay to the landlords compensation for being released from the 15% arrangement.
और तब उन्हें 15% अग्रीमेंट से मुक्त होने के लिए जमींदारों को मुआवजा देना था, हर्जाना देना था। Meanwhile, the illiterate peasants were through the trick of the landlords. और तब इस बीच अनपढ़ बटेदारों ने जमींदारों की चालाकी को भांप लिया। They were not ready to pay the compensation. और वे मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थे। Those who had signed wanted their money back. और जिन्होंने दस्तखत कर दिए थे उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। Let's proceed to the next paragraph in this story. Gandhi received summons to appear in court. गांधी को कचहरी में आने का आदेश। गांधी met the secretary of the British Landlords Association. गांधी ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन के सचिव से मिले। But he didn't give him any information. लेकिन उसने उसे कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं दी। गांधी met the commissioner. गांधी जी कमिश्नर से मिले। He only bullied him and advised him to leave the place. उसने केवल उन पर धौं जमाई और उन्हें स्थान छोड़ने की नसीहत दी। गांधी didn't leave. और तब गांधी जी वहाँ से नहीं गए। He proceeded to मोतिहारी, the capital of चंपारण. वे मोतिहारी की ओर आगे बढ़े जो चंपारण की राजधानी थी। A huge crowd greeted गांधी at the station. और तब एक विशाल जनसमूह ने गांधी जी का स्टेशन पर स्वागत किया। गांधी was served with an official notice to quit चंपारण immediately. गांधी जी को चंपारण तुरंत छोड़ने का एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया। गांधी जी made it clear that he would defy the order. और तब गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह उस हुक्म की या उनकी हुक्म की अवहेलना करेंगे। That means वो नहीं मानेंगे। So गांधी जी received a summon to appear in court the next day. और तब इसीलिए गांधी जी को आदेश मिला कोर्ट में आने के लिए अगले दिन। All night गांधी remained awake. पूरी रात गांधी जी जागे रहे। He wired a full report to the Viceroy. और सारे जो रिपोर्ट थे उनको उन्होंने तार के माध्यम से वॉइस रॉय को बता दिया, मैसेज को कन्वे कर दिया। The next morning, thousands of peasants demonstrated to support गांधी. और तब अगले दिन गांधी जी के समर्थन में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। It was the beginning of their liberation from fear of the British. और तब यह अंग्रेज़ों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। The officials felt helpless. और तब अधिकारी असहाय थे। गांधी helped them to regulate the crowd. और तब गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उनकी सहायता की। Well, that's it for today. Hope this explanation will help you to understand the chapter. Rest of the story we will see in the next video. Till then, thanks and bye-bye. Stay home, stay safe.